آپ جاننا چاہیں گے دعوت اسلامی کے اس پورے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے اخراجات کتنے ہیں؟ اخراجات تو بہت زیادہ ہیں، میں صرف آپ کو ایک جھلک بتاتا ہوں کہ اس پورے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے ملینز ہمارے والنٹیئرز ہیں جو فی سبیل اللہ دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر امپلائی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تقریباً 52,000 کے قریب ملک اور بیرون ملک میں ہمارے امپلائیز ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں دعوت اسلامی 52,000 خاندانوں کو سیلری دے رہی ہے۔ یہ بھی تو ایک ویلفیئر ہے کہ جو لوگ حلال روزی دعوت اسلامی کے ذریعے کما کر اپنے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، تو صرف سیلری کی مد میں دعوت اسلامی کے ماہانہ تقریباً 1 ارب 20 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، اور باقی اخراجات اس کے علاوہ ہیں۔ تو جب اتنا بڑا کام ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر اپنی دعوت اسلامی کا خوب ساتھ دینا چاہیے۔ یہ تحریک کتنی بڑی دین کی خدمت کر رہی ہے، ویسے ہے نا کمال کی تحریک، ہمارے بچوں کو حافظ بناتی ہے، عالم بناتی ہے، ہمیں مسجد کے امام پرووائیڈ کرتی ہے، شرعی مسائل کے لیے مفتیان کرام ہمارے لیے موجود ہیں، ہمارے علاقے میں مسجد کی ضرورت ہو تو مسجد بناتی ہے، بچوں کو اسکول پڑھنا ہو تو اسکول بناتی ہے، آگے ڈاکٹر انجینئر یا دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھنا ہو تو کالج اور یونیورسٹی بناتی ہے۔ اور جناب جب ہمارے گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو سنت کے مطابق تجہیز اور تکفین کے معاملات میں بھی دعوت اسلامی والے آگے ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ یا ہم میں سے کوئی گناہوں کی طرف جائے تو گھر پر آ کر، بازاروں میں آ کر ہمیں ہاتھ پکڑ کے نیکی کی دعوت اچھی انداز میں دے کر اللہ رسول کے راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آفت آ جائے تو یہ تنظیم خون بھی دیتی ہے، کھانا بھی دیتی ہے، راشن بھی پہنچاتی ہے، دکھیارے مسلمانوں کو گھر بھی بنا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، کون سا شعبہ ہے جس میں دعوت اسلامی ہمارا ساتھ نہیں دیتی؟ تو پھر کیوں نہ ہم بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، کیوں نہ اس عظیم کاروان کے ہم حصے بن جائیں، اپنا پارٹ پلے کریں۔ آئیے دعوت اسلامی کے دست و بازو بنیے، دور رہ کر دعوت اسلامی کو نہ دیکھیں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، مل کر اللہ رسول کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب سے دین متین کی ایسی خدمت لے لے کہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں اور مرنے کے بعد قبر میں بھی قیامت تک ہمیں اجر کا تحفہ ملتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام شرعی تقاضوں کے مطابق اور شرعی رولنگز کے مطابق ہونا چاہیے۔ قدم قدم پر ہمیں علماء کی اور مفتیان کرام کی ضرورت پڑتی ہے، شرعی سوالات ذہن میں آتے ہیں، اس کا حل کیسے کیا گیا؟ دعوت اسلامی نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، دارالافتاء اہل سنت، جس کی الحمدللہ 17 برانچز پاکستان میں بن چکی ہیں، اور صرف فزیکلی جواب نہیں دیے جاتے، ٹیلی فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور مدنی چینل پر لائیو پروگرام کر کے بھی ہمارے مفتیان کرام امت کی اصلاح کا سامان کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف سوالات جوابات نہیں، بلکہ جیسے جیسے مہینے آتے ہیں، رمضان سے پہلے زکوٰۃ کورس کروایا جاتا ہے، قربانی کے دن آنے والے ہوتے ہیں تو قربانی کورس کروایا جاتا ہے، رمضان سے پہلے رمضان کورس کروایا جاتا ہے، بلکہ اگر کچھ کمیونٹیز کو ضرورت ہوتی ہے کسی پرٹیکولر مسئلے پر رہنمائی یا جناب کورس کے لیے یا سیمینار کے لیے، وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہمارے مفتیان کرام وہاں جا کر ان کی تربیت کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل دارالافتاء اہل سنت سے ہر سال کم و بیش 1,70,000 سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ یہ بہت بڑا گیپ ناظرین محسوس کیا جا رہا تھا کہ جناب دینی تعلیم کے سسٹم تو بنے ہوئے تھے، مگر جب دنیاوی تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے تو لوگ دین سے دور ہو جاتے تھے۔ اسکول اور کالجز کا ماحول آپ کے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی نے اس گیپ کو محسوس کیا کہ کسی طرح کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا جائے جہاں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، دینی تعلیم بھی دی جائے، ہمارے بچوں کی شرعی لحاظ سے بھی تربیت ہو اور وہ ایجوکیشن کے میدان میں بھی پیچھے نہ رہیں۔ تو سبحان اللہ، دارالمدینہ ایجوکیشن سسٹم بنایا گیا اور دارالمدینہ نے اسلامک اسکول کا قیام شروع کیا۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی، دارالمدینہ اسلامک اسکول جو ہیں بوائز اینڈ گرلز کے ملا کے اس وقت تک 153 اس کی برانچز بن چکی ہیں، اور 35,000 سے زیادہ بچے اور بچیاں الحمدللہ دارالمدینہ کے ان اسکولز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، اب وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ کسی ڈاکٹر کو، انجینئر کو انشاءاللہ وزٹ کریں گے جو حافظ قرآن بھی ہوگا، عالم دین بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ اس گیپ کو دعوت اسلامی کور کرتے چلی جا رہی ہے، کیونکہ اسکول کے بعد اگلا اسٹیپ کالج کا ہے، کالج کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے، اور اب انشاءاللہ اسلامک یونیورسٹی اگلے چند دنوں میں شروع ہو جائے گی۔ دعوت اسلامی کا تعلیمی میدان میں ایک اور سنگ میل، ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC حکومت پاکستان نے دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پہلے کیمپس کے منظوری دے دی ہے۔ اس کیمپس میں 4 ڈپارٹمنٹ ہیں:
नंबर 1 डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, नंबर 2 डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज, नंबर 3 डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, नंबर 4 डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इस कैंपस का एड्रेस है दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी 11G मरकज इस्लामाबाद। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे, ये अज़्म है दिलों को। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल मदीना इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ इस बात की ज़रूरत भी महसूस की गई कि कुछ ऐसे इलाके भी हैं, गरीब लोग भी हैं जो दारुल मदीना की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लो बजट के स्कूल भी बनाए गए जिसका नाम रखा गया फैज़ान इस्लामिक स्कूल सिस्टम। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसकी 43 ब्रांचेस बन चुकी हैं और उसमें भी तकरीबन 6700 से ज़्यादा स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं। 4 साल पहले दावत इस्लामी ने एक डिपार्टमेंट बनाया, FGRF, फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन। याद रहे दावत इस्लामी वेलफेयर के काम तो कई बरसों से कर रही है। कश्मीर में जब आज से 17-18 साल पहले ज़लज़ला आया था उस वक्त भी दावत इस्लामी वालों ने जाकर उनकी इमदाद की थी, मगर जब बाकायदा कोविड आ गया, दुनिया में एक हलचल सी मच गई, तो प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बनाया गया और दुखियारे मुसलमानों की इमदाद शुरू कर दी गई। कोविड के ज़माने में 2 बड़े काम FGRF ने किए। 1 करोड़ के करीब लोगों तक आशिकाने रसूल का खाना पहुंचाया गया, कैश इमदाद की गई और उसके बाद तकरीबन 60,000 से ज़्यादा खून की बोतलें थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को पेश की गई, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि खून देने वाला कोई ना था। मगर अमीर अहले सुन्नत के इस ऐलान ने तो कमाल कर दिखाया। अगर मेरा खून किसी काम का हो तो मैं हाजिर हूँ, मेरा खून मैं इन मरीजों को देने के लिए तैयार हूँ। ये सब इस्लामी भाई मैदान में आए और अपने इन बेचारे दुखियारे बच्चों की मदद करें, दुखियारे मरीजों की मदद करें, आका की दुखियारी उम्मत की इमदाद करें। और फिर लाइनें लग गईं और आशिकाने रसूल ने अपने खून का अतिया पेश किया और ये काम अब भी जारी है। बल्कि हमारा ये ऐलान है, पाकिस्तान के तमाम इदारों को हमने ये कहा हुआ है कि जब जब आपको खून की ज़रूरत हो FGRF हाजिर है। जनाब आगे चलते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में एक ख़तरनाक सैलाब आया, एक ऐसी बारिश आई जिसने पाकिस्तान के कई इलाकों को डुबो कर रख दिया। 2022 के इस सैलाब में लाखों लोग बेघर हो गए, करोड़ों लोग परेशान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह FGRF ने अरबों रुपए की इमदाद की। 15,000 के करीब घर बनाने का हमने प्लान किया। आपको जानकर खुशी होगी कि 5,000 के करीब घर बनाकर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर हम हैंड ओवर कर चुके हैं। अब भी घरों की तामीर का सिलसिला जारी है। हमारा एक नारा है, हम भूले नहीं हैं, इंशाअल्लाह हम नहीं भूलेंगे। हमारी इमदादी काम जारी हैं। इसी इमदादी काम के दौरान ही तुर्किया और शाम में एक हौलनाक ज़लज़ला आया। 40 सेकंड के अंदर उनकी दुनिया तहोबाला हो गई। जो दुनिया में थे वो दुनिया से चले गए, सेहतमंद ज़ख्मी हो गए, बच्चे यतीम हो गए, ख़वातीन बेवा हो गई। आपकी दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने वहाँ भी रिएक्ट किया। फौरी तौर पर इमदादी टीमें वहाँ पर रवाना हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज, जी हाँ, 2023 के आखिर तक भी वहाँ इमदादी काम जारी है। हम उनको घर बना के दे चुके हैं। सीरिया के बॉर्डर के अंदर यतीम खाना दावत इस्लामी ने बनाया। लाखों लाख आशिकान रसूल तक गर्म कपड़े और खाने की अशिया पहुँचाई गई और आज भी उनकी इमदाद जारी है, क्योंकि हम भूले नहीं हैं। अभी ये काम जारी था कि गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर एक क़यामत ढा दी गई। बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में आ गए और बेघर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ौरी तौर पर मलावी के ज़रिए और फिर तुर्की के ज़रिए और UK के ज़रिए 3 अतराफ़ से फ़लस्तीन में इमदादी काम शुरू किया। वहाँ हज़ारों लोगों तक खाना और गर्म कपड़े हम पहुँचा चुके हैं और अगले प्लान्स में इंशाअल्लाह उनकी मज़ीद रिहेबिलिटेशन का हमने काम करना है। नाज़रीन, ये तो बात हुई कुछ डिज़ास्टर में रिएक्ट करने की कि दुनिया में मुसलमान जब परेशान होते हैं FGRF अपने शानदार नेटवर्क के ज़रिए फौरी रिएक्ट भी करता है और आपकी रकम का सही इस्तेमाल करता है। हमें फ़ायदा यह है कि पूरी दुनिया में चूँकि दावत इस्लामी के जो है वो रूट्स मौजूद हैं, लाखों आशिकान रसूल मौजूद हैं, तो हम दुनिया में कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो इतने बड़े नेटवर्क को जब हरकत में लाते हैं तो उसका नतीजा आपके सामने होता है। और हाँ, ये वेलफेयर का सारा काम शरई तकाज़ों के मुताबिक हो रहा है। आपका एक एक रुपया पूरी कोशिश होती है कि मुस्तहिक तक सही अंदाज में पहुँचे ताकि उसकी बरकतें हम सबको नसीब हों। ये आपकी अमानत है जो हमें उन तक पहुंचानी है। ये बात तो हुई डिज़ास्टर की, मगर उसके बाद महसूस किया गया कि माजूर बच्चे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में हैं और उन माजूर बच्चों के इलाज, मुआलजे, उनकी थेरेपीज़ और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए इदारे बड़े कम हैं। एक डिपार्टमेंट कराची के इलाके शारा फैसल पर बनाया गया FRC,
फैज़ान रिहेबिलिटेशन सेंटर, और देखते ही देखते उसकी अब 4 ब्रांचेस हो गई हैं। हज़ारों बच्चों का इलाज हो चुका है और हज़ारों का होता चला जा रहा है। ये इलाज भी बड़ा महंगा है और ये काम कैसे होता है, आइए कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। रहम फरमा मेरे मौला, रहम फरमा मेरे मौला, रहम फरमा मेरे मौला। सादिया हमारे पास जब पहले आई थी तो उनकी क्या कैफियत थी और अब क्या कैफियत है? मेरे मौला, रहम फरमा। अल्लाह ने हमारे बच्चे हमें सही सलामत दिए हैं, इन दुखियारे मुसलमानों की हम सबको मिलकर इमदाद करनी है। फिर इसके बाद नाजरीन ये देखा गया कि जनाब इलाज बड़ा महंगा है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। मदनी हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया जो बहुत कम फीस में एक शानदार अंदाज से इलाज की सहूलत दे रहा है। इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, अल्लाह की नेमत है ये दावत। मदनी हेल्थ केयर सेंटर के बाद मदनी क्लिनिक के भी ब्रांचेस बनना अब शुरू हो गई हैं। नाजरीन मदनी हेल्थ केयर सेंटर के बाद इस बात का एहसास हुआ कि दूर दराज के इलाकों में जब सैलाब आ जाता है, कोई आफत आ जाती है, तो वहाँ मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं होती। कोई ऐसी वैन होनी चाहिए जिसमें खवातीन का पर्दे के साथ इलाज हो सके, गरीब दुखियारे मुसलमानों के डोर स्टेप तक जाकर, उनके दरवाजे तक जाकर हम इलाज पहुंचा सकें। तो एक शानदार वेल इक्विप्ड जो है मदनी मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट बनाया गया। तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से ये वैन बनाई गई और अब वो मुख्तलिफ गरीब इलाकों में जाकर दुखियारे मुसलमानों को फ्री ऑफ चार्ज इलाज फराहम कर रहे हैं। ये काम कैसे करती है, आइए आपको दिखाते हैं। तू राजी हो जिससे वो काम मुझे से ले ले, तू राजी हो जिससे वो काम मुझे से ले ले, तुझे जो पसंद है वो काम मुझे से ले ले। नाज़रीन लावारिस और यतीम बच्चों की खिदमत ये बहुत बड़ी नेकी है। हदीस पाक का मजमून है, मेरे आका फरमाते हैं मैं और यतीम बच्चे की किफ़ालत करने वाला क़यामत के दिन इस तरह होंगे। नबी पाक ने दोनों उंगलियां मिलाकर फरमाया, यानी इस तरह हम साथ होंगे। तो सुभान अल्लाह, हमें भी सदका जारिया वाले काम में हिस्सा मिलाना चाहिए। FGRF ने बनाना शुरू किया मदनी होम, ये मेगा प्रोजेक्ट है जो अपनी तकमील के मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। देखिए ना कितना मुश्किल है कि हम अपने घर में किसी यतीम को पालें, फजीलत वाला काम है, लेकिन आज के दौर में ये बड़ा डिफिकल्ट है। तो दावत इस्लामी ये काम करने जा रही है, तो क्यों ना हम अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए, दुनिया से चले जाने वाले रिश्तेदारों के लिए, इसाले सवाब के लिए इस प्रोजेक्ट में हिस्सा मिला लें। हम चले जाएंगे, ये प्रोजेक्ट बाकी रहेगा, यतीम और लावारिस बच्चों की कफालत होगी, उनकी बरकत से हमारे बच्चे भी इंशाअल्लाह खुशहाल रहेंगे। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी। दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है IT डिपार्टमेंट। 100 के करीब IT प्रोफेशनल्स उसमें जॉब करते हैं और IT डिपार्टमेंट ने कमाल किया। हमारी 41 वेबसाइट्स हैं और 33 मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई गई हैं। मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि दुनिया की मोस्ट एक्टिव रिलीज वेबसाइट्स में से एक वेबसाइट आपकी और हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट है, जिस वेबसाइट का एड्रेस है dawatislami.net। ये वेबसाइट ने वो कमाल कर दिखाया कि माहाना लाखों आशिकाना रसूल इस वेबसाइट पर आते हैं और अपनी दीनी प्यास बुझाते हैं। वहाँ इन्हें बहुत सारे मसाइल का हल भी मिलता है, इन्हें बुक्स डाउनलोड करने को भी मिलती हैं, ये वीडियोस भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी मौजू से मुताल्लिक आप कुछ सर्च करना चाहें, इंशाअल्लाह आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, दुनिया भर में दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए उलमा की ज़रूरत होती है। दावत इस्लामी ने एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया कि जिसके ज़रिए उलमा की प्रोडक्शन की जाती है। जी हाँ, मेरी मुराद जामिअतुल मदीना से है। जामिअतुल मदीना में बड़े शानदार अंदाज में उम्मत के रहनुमा तैयार किए जाते हैं। दरस निज़ामी के साथ साथ मुख्तलिफ लैंग्वेज के कोर्सेज भी हैं, मुख्तलिफ स्किल इन्हेंसमेंट के प्रोग्राम्स भी हैं। उलमा को आज के दौर से हम आहंग करने के लिए उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है। आइए दिखाते हैं कि मुल्क और बैरून मुल्क में दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना किस
किस तरह हमें उलमा प्रोवाइड कर रहे हैं, और सुभान अल्लाह कौन सी ज़बान है, कौन सा मुल्क है और कौन सा दुनिया का खित्ता है जहाँ इल्म दीन की रोशनी को पहुँचाने में हमारा जामियतुल मदीना अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। इल्म का मुझको शौक अता कर खुदा, इल्म का मुझको शौक अता कर खुदा, इल्म नाफ़े मिले अज़ पाए उलमा, इल्म नाफ़े मिले अज़ पाए उलमा, इल्म का मुझको शौक अता कर खुदा। नाज़रीन, आज जो मैं डॉक्यूमेंट्री बयान कर रहा हूं और जो कारकर्दगी बयान कर रहा हूं, ये दिसंबर 2023 तक की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 1500 के करीब जामियतुल मदीना मुल्क और बैरून मुल्क में बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1500 इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ गोया दावत इस्लामी दुनिया भर में बना चुकी है, और इसमें इस वक्त तकरीबन 1,24,000 के करीब स्टूडेंट्स बगैर किसी फ़ीस के दरस निज़ामी कर रहे हैं, और इनमें हज़ारों वो हैं कि जिनकी अकोमोडेशन भी हमारे ज़िम्मे है, खाना पीना रहना, उनके तमाम मामलात वो दावत इस्लामी के ज़िम्मे हैं। ये पूरा डिपार्टमेंट बगैर फ़ीस के चल रहा है, जिसमें इल्म दीन फ्री ऑफ चार्ज सिखाया जा रहा है। और सुभान अल्लाह, आपको जानकर खुशी होगी कि इस डिपार्टमेंट की बरकत से अब तक कितने उलमा बन चुके हैं। अल्लाह की रहमत से तकरीबन 31,211 31,211 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें दरस निज़ामी से फारिग हो चुके हैं और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। दावत इस्लामी को वफाकी हुकूमत से एक एजुकेशन बोर्ड भी मिल चुका है, जिसका नाम है कंजुल मदारिस बोर्ड, जिसमें दावत इस्लामी के अपने मदारिसुल मदीना और जामियतुल मदीना के साथ साथ दीगर आशिकान रसूल के मदारिस भी इल्हाक करते चले जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त तक हमारे साथ 3,399 इदारों का इल्हाक हो चुका है, और 1,53,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के इम्तिहानात कंजुल मदारिस बोर्ड की तरफ से लिए जा चुके हैं। अल्लाह की रहमत से ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, और अब दावत इस्लामी के अपने बोर्ड की तरफ से जनाब MA इस्लामियात की, मास्टर्स की जो डिग्रीज़ हैं वो अलॉट की जा रही हैं। क्या आप जानते हैं जन्नत में घर बनाने का भी एक फार्मूला है? जी हाँ, हदीस पाक में आता है, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। हम सब ने दुनिया में तो घर बना लिए, क्या ही अच्छा हो हम दुनिया में रहकर अपने लिए जन्नत में भी घर बनाएं। ये कैसे आसान हो सकता है? दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है मजलिस खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिसुल मदीना, जिसके ज़रिए अल्लाह की रहमत से दुनिया भर में मसाजिद बनाई जाती है। और आपको पता है कितनी मसाजिद बनाई जाती हैं? साल की कमोबेश 600 मसाजिद बनाई जाती हैं। कहीं प्लॉट ख़रीदा जा रहा होता है, कहीं तामीर हो रही होती है, कहीं इफ्तिताह हो रहा होता है। अब तक हज़ारों मसाजिद दावत इस्लामी दुनिया भर में बना चुकी है। कुछ झलकियाँ आइए आपको दिखाते हैं। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम। यार आप भी अगर अपने मरहूमीन के लिए सदका जारिया का काम करना चाहते हैं, खुद अपने लिए आखिरत का ज़ख़ीरा इकट्ठा करना चाहते हैं, हमारे इस डिपार्टमेंट से रब्ता कीजिए, मिलकर आइए, अल्लाह का घर बनाते हैं। ये ज़माना मीडिया का ज़माना है, और मीडिया के ज़रिए भी बहुत कुछ गलत पहुँचाया जा रहा है, मगर ऐसे दौर में दावत इस्लामी ने मीडिया डिपार्टमेंट में जब कदम रखा तो कमाल कर दिखाया। सिर्फ 15-16 साल के अरसे में दावत इस्लामी के चैनल यानी मदनी चैनल ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जो माशरे पर असर छोड़ा है, यकीनन उसे आप भी जानते होंगे। लाखों लोगों की किस्मतें बदली, बेनमाजी नमाजी बनते चले गए, माँ बाप के नाफरमान फर्मा बरदार होते चले गए, बेपर्दा ख़वातीन ने पर्दा इख्तियार करना शुरू किया, हराम रोज़ी कमाने वाले हराम से तौबा कर बैठे, और ये सिलसिला अब भी जारी है। करोड़ों आशिकान रसूल मदनी चैनल देखते हैं, और सिर्फ उर्दू ज़बान में नहीं, ये ऐसा कमाल का चैनल है जिसने एक ही वक्त में उर्दू के साथ साथ इंग्लिश मदनी चैनल बनाया गया, फिर उसके बाद बांग्ला ज़बान में मदनी चैनल मौजूद है, और उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर अरबिक मदनी चैनल की बहारें हैं। अब्दुल मुस्तफ़ा कहने में कोई हर्ज ही नहीं है, बल्कि ये तो नाज है कि हम आका के गुलाम हैं। काश आका भी फरमा दें कि तुम मेरे गुलाम हो। The final prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that if a person who missed prayer in congregation came to know what was in store for him, he would drag himself to the prayer. খারাপ এর মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার কেমন কুফল আছে। যখন বান্দা খারাপের নিমজ্জিত হয়ে যায় না, তার রোজগার কমে যায়। যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করবে সে কখনো তার অন্তরে প্রশান্তি থাকবে না। আখিরাতের ক্ষতি তো আমরা শুনেছি আছে। और फिर सिर्फ बड़ों के लिए नहीं,
किड्स मदनी चैनल का जब आगाज़ किया उसने तो कमाल कर दिखाया। बच्चों के ज़रिए नेकी की दावत बच्चों को दी जा रही है, मगर उसके साथ साथ जब कार्टून्स बनाए गए, इस्लामिक एनिमेशन खाके बनाए गए, तो उसने तो कमाल कर दिखाया। आज हमारे सोशल मीडिया पर इन कार्टून्स के 50-60 मिलियन व्यूज़ आते हैं। इससे पता चल रहा है कि माशरे में कितनी बड़ी तादाद वो है, कितने बच्चे वो हैं जो हमारे इन कार्टून्स के ज़रिए फैज़याब हो रहे हैं। और हाँ, ये कार्टून सिर्फ उर्दू ज़बान में नहीं, एक बार बनाने के बाद हम उसे अरबिक ज़बान में, इंग्लिश ज़बान में और दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में डब करते हैं। और मुख्तलिफ मुल्कों के एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ने हमसे रब्ता करना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ एयरलाइंस में हमारे ये कार्टून्स चलने शुरू हो गए हैं, बल्कि मुख्तलिफ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ने तो अपने सिलेबस के तौर पर हमारे कार्टून लेना शुरू किए। हम फ्री ऑफ चार्ज उन्हें डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसूद पैसे कमाना नहीं, हमारा मकसूद इल्म दीन पहुंचाना है, आने वाली नस्लों की शानदार तरबियत करना है। नाज़रीन, ये इस्लामिक कार्टून्स कैसे हैं, आइए कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया। अच्छे बच्चे होते हैं वो तो कभी भी अकेले बाहर नहीं जाते। लेकिन क्यों? भाई सबसे पहले तो बाहर जाने के लिए बाबा से इजाजत लेनी चाहिए। আমরা এক কাজ করি, বাবলু ভাইয়ের ঘরে যাই। কাল চলে আসবে গোলাম রসুল ভাই, তার ঘরে যাওয়ার কি প্রয়োজন? That when a Muslim inquires after another Muslim in the morning, then 70,000 angels keep supplicating for his forgiveness until the evening. لا تفعلي ذلك في المستقبل، فهمتي؟ وأنت أيضا يا رابعة يجب عليك ألا تسرعي في تناول الطعام أبدا. Alhamdulillah, we hebben voor het eten onze handen en mond gewassen. Laten we nu Bismillah wa ala barakatillah lezen en beginnen met eten. नाज़रीन, अब चलते हैं दावत इस्लामी के एक और खूबसूरत डिपार्टमेंट मदरसतुल मदीना की तरफ। सुभान अल्लाह, कुरान पाक के नूर को घर घर पहुंचाने का जो बीड़ा दावत इस्लामी ने उठाया है, जो ये काम दावत इस्लामी ने अपने ज़िम्मे लिया है, इसका अंदाज़ और इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इस खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की खिदमत की जा रही है कि अकल हैरान हो जाती है। जी हाँ जनाब, इस वक्त दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलाकर 12,699 मदरसतुल मदीना मौजूद हैं, और इनमें स्टूडेंट्स की तादाद 3,73,729 373,729 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और ये सब के सब फ्री ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं। है ना हैरत अंगेज बात कि इतना बड़ा नेटवर्क और सब बगैर फीस के। और सुभान अल्लाह, इम्पैक्ट क्या हुआ है कि अब तक 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हिफ्ज़ कुरान या नाज़रा कुरान मुकम्मल कर लिया है। तो ये है दावत इस्लामी की खिदमात सोसाइटी के लिए। आज आपको माशाअल्लाह तरावी सुनाने के लिए हुफ़ाज़ की शॉर्टेज नहीं मिलती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोडक्शन है जो दावत इस्लामी की तरफ से इस उम्मत को दी जा रही है। दावत इस्लामी का अपना मकतबा मौजूद है, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस वक्त शायद दुनिया के बड़े रिलीजियस इस्लामिक मकतबों में से एक मकतबा मकतबतुल मदीना है। हमारी करोड़ बुक्स अल्लाह की रहमत से सेल होती हैं। लोग कहते हैं आजकल लोग किताबें पढ़ते नहीं हैं, डिजिटल ज़माना है, मगर ऐसे डिजिटल ज़माने में भी इस्लामिक बुक्स का करोड़ों की तादाद में सेल होना ये इस बात की दलील है कि दावत इस्लामी ने वो सोच पैदा की है कि इल्म दीन सीखना है और उलमा की किताबों के ज़रिए सीखना है, उलमा की किताबें पढ़नी है। सुभान अल्लाह, मकतबतुल मदीना किस प्यारे अंदाज में दीन मतीन की खिदमत कर रहा है, कुछ झलकियाँ आइए आपको दिखाते हैं। मकतबतुल मदीना, मकतबतुल मदीना, मकतबतुल मदीना, मकतबतुल मदीना है मुंतखब कुतुब यहाँ, मुआविनी है उलमा है मुंतखब कुतुब यहाँ। मकतबतुल मदीना की पाकिस्तान में 92 के करीब ब्रांचेस भी मौजूद हैं। शजरकारी बड़ी नेकी का काम है, नबी पाक की सुन्नत भी है, हमारे वतन को ज़रूरत भी है। इस दुनिया में इस वक्त जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी एक वजह ये बताई जा रही है कि जनाब दरख्त काटे जा रहे हैं, मौसम बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत को महसूस किया गया, अपने नेटवर्क को FGRF ने इस्तेमाल किया, और अब तक सिर्फ पाकिस्तान में कमोबेश 30 लाख पौधे FGRF की तरफ से लगाए जा चुके हैं। हमारा नारा है पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। कई पौधे तो अब दरख्त बन चुके हैं और उनकी निगहदारी
نگہداشت کا انتظام جاری ہے اور یہ شجرکاری بھی جاری رہے گی. یاد رہے جب تک پودا لگا رہتا ہے لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا, کیونکہ اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. آئیے اس نیکی کے کام میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے. درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ, گرمی کو روکے یہ دیتا ہے سایہ, اچھا کیا جس نے اس کو لگایا, دنیا دی کے فوائد کو پایا, صدقہ ہے اس میں نبی نے بتایا. مسلمانوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے ناظرین. سبحان اللہ, احادیث میں مضمون ملتا ہے جو مسلمانوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ اسے جنت کے دسترخوانوں پر کھلائے گا. اور بہترین لوگوں کے جو اوصاف بیان کیے گئے اس میں بھی ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے شعبے لنگر رضویہ سے تعاون کریں. کیا آپ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کروڑوں لوگوں تک کھانا پہنچایا جاتا ہے اور کھانا کھلایا جاتا ہے. جی ہاں, لاکھوں لاکھ عاشقان رسول دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے ہیں, انہیں کھانا پیش کیا جاتا ہے. اور رمضان میں لاکھوں عاشقان رسول دعوت اسلامی کے مراکز میں اعتکاف کرتے ہیں, انہیں سحری افطاری کا انتظام پیش کیا جاتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس نیکی کے کام میں بھی ہمارا تعاون کیجئے. اور سبحان اللہ, یہ ایک بات یاد رکھیے گا, دعوت اسلامی کے دسترخوان پر نارملی وہی لوگ کھانا کھانے آتے ہیں کہ جو دین سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو گویا آپ کھانا کھلائیں گے, جو قوت حاصل ہوگی اس سے ایک بار پھر وہ دین سیکھنے کی طرف جو ہے وہ انوالو ہو جائیں گے. تو آپ کا کھانا کھلانا بھی یوں سمجھیے کہ وہ ڈبل فائدے کا باعث ہوگا. تو آگے بڑھیے اور دعوت اسلامی کا اس شعبے میں بھی ساتھ دیجیے. دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی زندہ باد. ناظرین, موبائل اربوں لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور تقریباً ہر ہی شخص سوشل میڈیا سے اپنا تعلق رکھتا ہے. دعوت اسلامی نے سوشل میڈیا کے ذریعے نیکی کی دعوت پہنچانے کا جو کام کیا وہ اپنی مثال آپ ہے. اس وقت تقریباً 5 کروڑ سے زیادہ سبسکرائبر اور فالوورز مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود ہیں. دعوت اسلامی سوشل میڈیا کے تقریباً تمام پلیٹ فارم پر موجود ہے. یوٹیوب ہو, فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, سوشل میڈیا کے تمام ہی ڈپارٹمنٹس میں دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے 9 لوگوں سے اسٹارٹ ہونے والا ڈپارٹمنٹ آج اس کے 10 سب ڈپارٹمنٹ ہیں, اور اس تمام ہی ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے والے تمام لوگ پروفیشنل, ٹرینڈ اور اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, اور یہ تمام لوگ مل کر اتھینٹک معلومات پہنچا رہے ہیں. دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے, اس پہ نظر کرم سرکار کی. عاشقان رسول کی عظیم الشان مدنی تنظیم دعوت اسلامی دنیا بھر میں کس طرح دین متین کی خدمت کر رہی ہے, آج آپ کو مختصر دعوت اسلامی کا تعارف پیش کرنا ہے. میری گزارش ہے اپنا کچھ وقت ہمیں دیجیے. انشاءاللہ اگلے چند منٹوں میں آپ دعوت اسلامی کے بارے میں جتنا جانتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی محبت اور آپ کا پیار دعوت اسلامی سے بڑھتا چلا جائے گا. دعوت اسلامی کا کام تقریباً 42 سال پہلے, جی ہاں 1981 میں کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے شروع ہوا, اور اب دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی اللہ رسول کے دین کے پرچم کو بلند نہیں کر رہی, وہاں کس طرح سنتوں کی خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے, آج آپ کو کچھ بتانا ہے. اور یہ سب کچھ ہوا ایک مرد کلندر کی کاوشوں کے نتیجے میں. الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بیڑا اٹھایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے رفقا بڑھتے گئے, عاشقان رسول جڑتے گئے, اور یہ کام آگے بڑھتا چلا گیا. دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ. پہلے اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا, ویکلی اجتماعات, اس کے بعد صوبائی اور پھر ملکی سطح پر اجتماعات منعقد ہوئے, اور جس میں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول شریک ہوتے چلے گئے. الحمدللہ مدنی قافلوں کا ایک سسٹم بنایا گیا جس کے ذریعے عاشقان رسول گاؤں گاؤں, شہر شہر اور ملک ملک سفر کرنے لگے. 3 دن, 12 دن اور 30 دن کے مدنی قافلوں کے ذریعے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت پہنچائی جانے لگی. الحمدللہ آج بھی سالانہ دنیا بھر میں لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی مدنی
قافلوں میں سفر کرتے ہیں. سیکھ لے سنتے قافلے میں چلو، ہوگی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامت قافلے. ناظرین، امیر اہل سنت نے ایک بہت خوبصورت ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے تو مدنی قافلے ہیں، مگر اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے ہمیں نیک اعمال عطا فرمائے گئے. جی ہاں، بہت خوبصورت ایک بکلٹ ہے جس کا نام ہی نیک اعمال ہے، اور اس کا جائزہ لینے کے لیے دعوت اسلامی والوں کو ترغیب دی جاتی ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے 72 نیک اعمال ہیں، اسلامی بہنوں یعنی خواتین کے لیے 63 ہیں، اور بچوں کے لیے خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اس کی کیٹیگریز موجود ہیں. الحمدللہ عز و جل نیک اعمال کی اپلیکیشن بھی موجود ہے. آپ اسے ایپ اسٹور سے یا پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. آئیے کچھ نیک اعمال کی جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. نمبر 1، اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، غصے کا علاج کیا، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مسلمانوں کو سلام کیا، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، وقت پر قرض ادا کر دیا، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، ماں باپ کا ادب کیا. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا